everyone. I, I Keshav Singla, today's session moderator. Welcome you all to today's webinar, From Personality to Performance, the secret sauce of success. Having a key highlights, learn to identify and adapt to different personality styles with our team and associate people at professional and personal domain. Build trust, clarity, and alignment while dealing with people. Improve communication, collaboration, and conflict resolution. At first, I would like to thank our webinar organizer, Dr. Raj Chawla, to provide such an amazing platform where we get knowledge across different disciplinaries. I would request our organizer, CA Dr. Raj Chawla, to give opening remark to start the webinar. Thank you, Keshav. Good afternoon, everyone. First of all, I welcome C. Amit Khareji from Muscat, Oman, as a session speaker of our this today webinar. And today we are going to discuss very important topic, from personality to performance, the stress source of success. And today he will learn how to identify and adopt the different personality style within your team and associated people at professional and personal domain. Build trust, clarity, and alignment while dealing with people. Improve communication, collaboration, and conflict resolution. Develop both self-awareness and interpersonal sensitivity that can be applied in professional and personal sphere. Foster a team culture where collective growth leads to shared success. So, friends, if you have any query during the session, you can raise your hand and ask our faculty during that time. Otherwise, you can write your query in the Q&A. Our faculty will definitely take all the query of our members. So, with this, once again, I welcome all of you and our guest faculty. Thank you very much. Now, I would like to honor our esteemed speaker, CA Amit Khare, who is not only a speaker, session chartered accountant, but also a mentor, motivational speaker, NLP practitioner, and transformational coach with over 2 decades of rich experience across different multiple countries. His unique ability to blend professional wisdom with life lessons has inspired countless individuals to think consciously and act ethically. His signature philosophy of think of wise has helped many unlock their internal potential and achieve meaningful success. With this, I would request CA Amit Khare sir to kindly take forward the session. Thank you very much. And really, personally, I would like to thank Dr. Raj Chawla, who is a chartered accountant and my best friend, because whenever, I was there in India, so I met with Dr. Chawla. And I am really thankful that this opportunity is being given, to share whatever is there with me, that it be shared with others. So as topic say that it is a secret source. So after this, I am sure that it will not be no more secret. Everyone would be knowing it. And my only, request that please listen what I'm saying. Try to inculcate in your life, and it is not only professional life. Let me clarify. It will be helping you in your personal life as well. And there is no difference in professional and personal. As per me, human being is same. Like Amit Khare is Amit Khare, whether he is wearing a suit, sitting with the professionals, or he is at home, or he is in a party, or he is with his friends. Amit Khare is always same. Yes, a little bit, tweaking is required. A little bit change is required. That's it, and that is how our personality is working actually. So I would share one PPT also, and where I will just see and I will explain how our personalities makes a difference. So as we go along, as Dr. Raj Chawla suggested, that if you have any particular query, you can raise your hand. We'll definitely take up those queries. However, at the end also you are free to ask whatever questions are there. And I would say
Let it not be like a question. It should be like involvement. I want you people to be involved as much as possible. So let it, this workshop should be interactive, and I would definitely learn a lot of things from you. And same, I am expecting that whatever I am saying today, at least it will, give benefit to your personal life. So if possible, I'm just requesting, it is not a forceful thing, but if possible, if you could please have your videos on, if it is okay. Why? Because when we are speaking, your body language, my body language, and everything, those gestures are very important. It will give you also more, benefit in learning. So whenever we interact face to face, this is a different, altogether a different experience. So I'm just requesting whoever is able to put on the videos, please do that. Audios, obviously, it is the control with, I think, Mr. Lokesh. Oh, sorry, I just did not get the name. The He's person, so Keshav. maybe Yeah, whenever yeah. he Keshav, No, sorry, no, Keshav. we So don't Mr. have Keshav. control, sir. We have open, no issue. Okay. Yes. I don't think that any wonderful opportunity more than that Yeah. is available. Yeah. So thanks. Yeah. So whenever you want, you can unmute yourself, and please keep it mute also, because sometimes sound may difference. Yes, But yes. please unmute yourself. Feel free to ask. Feel free to discuss. So without taking much time, no, this session is actually 1.5 hours is allotted. I will try my level best to put it everything in that way. Though this workshop is very big, and maybe we can in future also we can meet if there is something left of the second part of this workshop. But let's just start. So I'm just sharing my screen, and please let me know if everyone is able to see those screens. अकाउंट जो मेंटेन करते हैं उनके लिए, हमारे लिए तो है भी नहीं. So I hope my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please And I am continue. audible also. Yeah. And I am Yeah. audible also. Okay. Please continue. Yes, sir. Thank you, sir. So this is from personality to performance and the secret source of success for a happy and healthy life. See, we all are chartered accountant and we know how stressful is our life. So this workshop and this session will help definitely to understand who I am, who are the other people other than me, whom I am meeting every day in my office, at home, at my friend circle, or wherever I am going as a human being, whoever I am meeting. So those things should be settled in a way that it should help us. And one more thing I would like to know, if all are comfortable with English or Hindi or mix or whatever is the way we want to run this workshop, because I hope everybody knows Hindi very well. Or is there anyone who is not even knowing Hindi? So just let us know. Otherwise, I will try my level best to make it more comfortable, because I am also comfortable in Hindi, no doubt, and everybody is comfortable in Hindi. So when we can understand the things in a proper way, the benefit is more. Okay. So happy and healthy life everyone wants. So we also are there to help you wherever possible. So about today's workshop and about today's session, it will provide a foundation to get maximum benefit out of play shop. I am treating it as a play shop, not a workshop. So it's like a play shop. When you come to know, when we interact, it's like a game. It's like a play. This is this program, which is a core aspect. So hope everybody will definitely get those things to make our understanding how this program is so far and much value of to you. So that is what I will try my level best. What are the program contents? So to understand our own personality. So this is very important. If I ask someone, like if whenever we are meeting, people are saying, what is your strength? What is your weakness? So let me tell you one thing, that there is nothing like strength and weakness. It is our nature. The way we are, what makes people happy, what makes people, leverage, it is our strength. And what is weakness, which may go in a negative way. But believe me, there is nothing like strength and weakness. In general terms, we say strength and weakness, but it is our nature, our personality. So with context, a weakness become strength also, and with context, a strength may become weakness as well. So we need to understand. So to understand our personality, our strengths and weaknesses, to know the reasons behind my personality. Yes, we are human beings. We are living in this beautiful world. We are interacting with people.
Sometimes we are happy, sometimes we are sad, sometimes we are angry. Sometimes we don't know how to process ahead. So everyone in this universe is having its own personality. Some of these all personalities feature in next slide, few slides, you will come to know what kind of personalities are there. So those kind of personalities. So I don't know, and I'm not aware if that video has been shared with those participants so far, because there is an exercise to be done. And if you have done that exercise, very good. If you did not do it for whatever reason, after this workshop, I am humbly requesting, please do that exercise. Send those Excel working into one email, which is called ThinkoWise. It's my brand, thinkowise@gmail.com. You can share it there. My team will come up to you and will share your personality trait. So once you get your personality trait, this workshop definitely is linked with that. So you will know, oh, my personality is this, I'm this kind of person. My, boss personality is this, he's this kind of person. I'm just giving an example. If you know what type of personality you are having and what type of personality your boss or your colleague is having, then you know you can interact in a very well way. कई बार होता है, आप लोगों को मालूम होगा, शादीशुदा लोग हैं यहाँ पर, जो भी जिसकी शादी हो गई है, मैरिज हो रखी है या गर्लफ्रेंड है, आई एम गोइंग इन अदर वे बट इन ए लाइटर वे. सो व्हाट हैपन समटाइम्स, आप देखते हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हीरे की अंगूठी देता है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. द इमोशंस आर नॉट गेटिंग एट दैट लेवल. और समटाइम कोई आदमी एक गुलाब का छोटा सा फूल दे देता है एंड दैट इज समथिंग हैपनिंग इन ए वाइडर वे. बहुत अच्छा लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि हीरे की अंगूठी की वैल्यू उस गुलाब के फूल की वैल्यू कीमत से ज्यादा है. लेकिन फिर भी कई बार वो काम नहीं करता और कई बार एक छोटा सा फूल वो काम कर जाता है. माय फ्रेंड, इज ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट. जिनको आप वो गिफ्ट दे रहे हैं, या जिनको आप वो फूल दे रहे हैं, या जिनको आप वो हीरे की अंगूठी दे रहे हैं, वो उस पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट कर रहा है या नहीं, यही इंपॉर्टेंट है. तो ये खाली एक एग्जाम्पल है, इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई इन एंटायर लाइफ विद एनीवन. समटाइम आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत अच्छा एक्सेल शीट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमआईएस बना रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना है, बहुत लॉट ऑफ कलर्स, लॉट ऑफ ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, और आपने प्रेजेंट किया, लेकिन पता चला सामने वाले को वो पसंद नहीं आया या उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगा. और समटाइम आप देखें छोटा सा एक्सेल शीट, ब्लैक एंड व्हाइट, सिंपल नंबर्स आर देयर, जस्ट नंबर्स. ओ सामने वाले को इतना पसंद आया कि ही इज वेरी हैप्पी, ओ वाओ, दिस इज व्हाट आई वाज वांटिंग. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी द अदर पर्सन इज पोजेसिंग. कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है. समटाइम वी वांट टू मेक इट परफेक्ट, 100% परफेक्ट. विदाउट परफेक्शन वी कांट रिलीज इट. हम आगे भेजते ही नहीं है. दैट इज बिकॉज माय पर्सनैलिटी इज लाइक दैट. और समटाइम हम कुछ भी बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं और हम रिलीज करते हैं, कई बार वो सक्सेसफुल हो जाता है. सो वो सारे ट्रेड्स जो है, जैसे जैसे हम इस वर्कशॉप में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, एंड देन यू विल गेट टू रियलाइज, ओ यस, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई एम हैविंग, एंड यू कैन आल्सो असेस व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी योर कोलीग माइट हैव. ओके, देन इट इज कमिंग लाइक टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल. So who is the personality of the people who are always there, your relatives, your surroundings, and everyone? To have much better understanding, love and bonding with my relations. Obviously, my relations are very important. So that relation may be a professional relationship, or that relation might be a personal relationship, but relationships do matter because we are human beings. Okay. Can you see this slide? What it's saying? What you know means आपको अपने बारे में क्या पता है वो आपको मालूम है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम लिविंग इन मस्कत, आई एम फ्रॉम दिल्ली. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई नो अबाउट माई सेल्फ. वेरी गुड, बट यू सी द पोर्शन. वट यू नो यू डू नॉट नो, दिस इज द बिगर वन. देयर आर थिंग्स जो हमें खुद नहीं मालूम कि हमको मालूम है हमारे बारे में. क्या नहीं मालूम है, या क्या मालूम है जो हम नहीं है. I'm not a pilot. I'm not a marathonist or something like that. So these are
if you add these two, okay, these are the two things, what I know about myself, which I know, or what I don't know about myself. But what is the major part? Can you see? Almost like 80%. What you don't know means मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं है कि मैं वो नहीं हूं, और हम सोचते ही नहीं है उसके बारे में. एंड दैट इज द येलो पार्ट, इज द ब्लाइंड स्पॉट. और ये हमें मालूम नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे और क्यों हमें मालूम नहीं है. अगर हम इसमें से जितना ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं हमारे बारे में, देन यू सी हाउ योर लाइफ, टोटल लाइफ मेथोडोलॉजी विल गेट चेंज्ड. आपको अपने बारे में जितना मालूम होगा तभी आप दूसरे को समझ सकते हैं और अपने बारे में दूसरे को बता सकते हैं. लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं है कि मैं क्या हूं. ओके, so if you see the percentage wise, it is almost like this. 5 to 10% is what we know. 5 to 15 to 10% is like what we don't know about ourselves. But this is the blind spot. Okay. Okay. So I'm going to do one exercise. I would ask if you people can unmute yourself and just see and just let us know what is your answer for that or how you are taking. So this is a numbers. If you see, can you see and read the numbers in chronological order? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wherever the numbers are there, just see in the moment this slide is gone, in 1 or 2 seconds, how many numbers in the serial order you can recognize in this set. Okay, ready? So if I ask you how many numbers you have seen in this, can somebody would like to ask answer how many numbers you have seen in the chronological order in this slide? I want CAs or the colleagues to be involved in this workshop. I would definitely want you people to participate in as much as way you can. So anybody would like to answer? Yes. Yes, Keshav. Nobody is there? Sir, no one. So are they able to hear me and are they able to see? Can you please check or can you please ask someone to unmute and see? Saurabh, kindly verify. Yes, sir, they are saying that they are able to hear. Why they are not involved themselves? My friends, you are the future. You have to be here. Yes, somebody was there. Sir, we can recognize the numbers. Do we need to Yes. count them? I am saying recognize. If suppose in 1 second, how many numbers you would have recognized, sir, in chronological order? Maybe 1, 2, 3, or 4. Yeah. Okay. So what the crux of this workshop? Just let us know. So I am just going to second thing, but I want it interactive. Suppose now I am giving you this window also. Here you can see 8. Yeah. Okay. But now I'm going to again to that same picture. And if you can see now, you can at least go to 8. Why? Because I have made it in a more precise way, in sectors. You understand? So if you, after that segment, because this is the same picture, if you see, these are the same pictures. These numbers were already there in the same picture. But in this, it was in unstaggered way. Some number is there, some number is there, and you need to understand where is the number. When we make it more precise, more in a particular section, इसको बहुत ज्यादा डिफाइन कर दिया, अच्छी तरह सजा दिया, समझ में आ गया कि कहां पर 1 है, कहां पर 2 है, where is 3 or 4. So now you can at least get 8 or 9 numbers to see. And these are the same pictures. If you see both the pictures, this is the first, left hand side is the first picture and right hand side is the second picture. But same picture, but with more precise way where you can find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So why it is happening? You can somebody want to answer? Why it has happened like that? What value
Structured approach. Structured approach. Same happen with our personality also, sir. Same happen with our personality. When we don't know about ourselves, or we know about, like, if I ask anybody in this, though I want more interaction in this workshop, let me tell you, otherwise I will just tell you a lot of things and I will go. But believe me, you will not be able to get the 100% of this workshop otherwise. So please be more interactive and don't mind what you are saying. Yes, we are here to listen to you also. So what I'm saying, same thing happens with our personality. हमें अपनी personality के बारे में बहुत थोड़ा बहुत मालूम है. If I ask someone, what are your strengths? How many strengths you can say? 1, 2, 3, 4, 5. And if I ask someone, what are your weaknesses? Or what are your negative thoughts? What you think about yourself? Hardly 1 or 2. Is it correct or not? Yes, sir. So what happened? It is correct, but it is not the way, because we don't know much about only 5 strengths, 2 or 3 weaknesses. We are here living for at least 20 years, 25 years in this earth, or more than that. I am 40 years plus. So what I'm saying, इतने सालों में भी हम अपने आप को ज्यादा नहीं जान पाए. तो ये वर्कशॉप में आपको कम से कम इतना तो मैं बता सकता हूं कि आपकी कम से कम 25 या 30 आपकी स्ट्रेंथ, और ऐसे ही सिमिलर 25 से 30 आपकी वीकनेस जो मैं बता रहा हूं, और आप खुद जज करेंगे जैसे जैसे आप इस वर्कशॉप में आगे बढ़ेंगे. यस, आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दैट, I am like that, or my colleague is like that, or my boss is like that. Okay, this kind of thing. So, in way, it will be giving you benefits. Okay, so ground rule of this workshop, simple ground rule. I will not take much time on them. Be ready to learn with an open mind. This is very important. Please leave everything behind. When you are here for 1.5 hour or 2 hours, whatever time we'll be having in this workshop, please be here. Please do not get engaged in other works. Otherwise, you will lose. It's not me or it's not the people who are engaged. But if you are not engaging completely in this workshop, you will lose something of it. So please have all the assignment, exercise, etc. completed. So which I told you कि एक exercise है, वो आप लोगों ने नहीं किया, but वो please इस workshop के बाद जरूर कीजिएगा. Whenever any participant is sharing their thoughts, always give attention to notes. So this is exercise. So I don't know how much. If somebody has gone through that video, which link might have shared. Anyone? No. Why no? Sorry, I'm now like a teacher, but why no? Maybe you might not get time. If you would have done that exercise beforehand, believe me, you will be more involved in this workshop. But anyhow, you please do it. I'm just explaining in brief, which is a self-explanatory video of my YouTube channel. You can just see there are links. You can download the things from there. Do that exercise. It will not take more than 15 minutes. Yeah. But do that exercise. But how do you have to do? Everything is self-explanatory in that video. Okay. 40 questions are there. So 20 is for strength, 20 is for weakness. What you have to do, जो भी आपको उसमें बेस्ट ऑप्शन लगता है, डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक. जो भी आपको 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन लगता है, आप उसको टिक कीजिएगा. थोड़ा टाइम लेके आराम से उसको काम को कीजिएगा, एंड देन यू विल सी व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ दैट पर्सनालिटी. ओके, these are the clues which are explained in that video, so I will not take much time over there. So once you've done that 40 exercise and all, you know, I told you that we have all are having some sort of personalities with us. So what are the personalities? Basically, we are dividing our all personalities in 4 major personality group, that is popular, powerful, perfect, and peaceful. Sometimes the name itself suggests what kind of personality it would be there. So I just want to give you some thoughts on that, whoever is sitting in this workshop. Believe me, कोई भी personality गलत या सही नहीं है. Number 1. If you say, okay, popular personality might be good, but popular personality is also having its own weaknesses. Powerful, oh, I want to be a powerful personality. You can't. It is God-given personality already to us. We are having our personality at the time of birth itself. Only thing is that slowly and gradually our personality takes a little bit shape. जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं, जैसे जैसे हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल लाइफ में या कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, तो हमारी जो सराउंडिंग होती है वो हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा इम्पैक्ट करती है. बट बिलीव मी, वो इम्पैक्ट सिर्फ 10% ही होगा.
90% जो मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, और जो इन चारों पर्सनैलिटीज में कहीं ना कहीं है। आर यू विद मी? Yes, sir. बिकॉज यू नीड टू Yes. अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हमें जो पर्सनैलिटी ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने दी है, या जिसको भी हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो मैं हूं वो मैं हूं, और वो मैं वैसा ही रहूंगा। आज मैं यहाँ कोट पहन के आ गया क्योंकि एक प्रोफेशनल मीटिंग है, लेकिन अगर मैं ये कोट पहन के नहीं आता तो भी मैं ये प्रोफेशनल मीटिंग कर सकता था। द ओनली थिंग इज दैट हम लोग थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटीज को, अपने आउटर बिहेवियर, आई एम सेइंग पर्सनैलिटी में भी आउटर बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ द पीपल एंड सराउंडिंग्स। अदरवाइज हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी वैसी की वैसी रहती है। तो सबसे पहली बात, आप लोग इस वर्कशॉप के बाद एक चीज तो जान जाएंगे कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रिलीफ। हम लोग हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं करते, हम कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हैं। हम आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, अपने रहन सहन पहनावा को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल दिल से जो मेरी पर्सनैलिटी बनी हुई है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला रूल यही है, मेरी जो पर्सनैलिटी है आई नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट। हम लोग गलती क्या करते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी या जो हमारा बिहेवियर है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहां पर बहुत बड़ा ट्रैप है। So we don't want to accept what I am, but I always want to change my personality, which is a wrong direction, which is a wrong track. What I have to do? First, I need to accept Amit Khare is like this. Once I accept it, my body, my all senses, अपने आप मैं जो चाहता हूं बनना उसमें मेरी मदद करती है। ओके, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हो सकते हैं, ये काम कीजिए। बट अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता कि भाई मेरा वॉइस बहुत लाउड है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा और मैं चेंज करना चाहता हूं, बिलीव मी, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के थोड़े टाइम के लिए चुप हो सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए वॉइस को मॉड्यूलेट करके थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी आप अनकॉन्शियस उसमें हैं, जब भी आप कैजुअल मीटिंग में हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल बिहेवियर पे आ जाएंगे। तो ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए, यस यहां मुझे ऐसा कहना है, यहां मुझे ऐसा कहना है, बिल्कुल जरूरी है, बट ओरिजिनल पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 4 पर्सनैलिटीज: पावरफुल, पॉपुलर, परफेक्ट एंड पीसफुल। नाउ if you would have done your exercise, I would have given you your personality type also. Suppose I'm taking an example and you will relate what kind of personality you can. So there are 2 personalities. I will just give you. Okay, these are the basics to know characteristics and all, whatever personalities characteristics are there. So we'll not go much on text, but we'll straight away go to what type of personality. So let me tell you. जब आप एक्सरसाइज को करेंगे और जब आप thinkovize@gmail.com पर भेजेंगे, तो मेरी टीम जब आपको पर्सनैलिटी भेजेगी तो वो पर्सनैलिटी के 2 पर्सनैलिटीज होंगी उसके अंदर। सपोज पॉपुलर माइट बी विथ सम पावरफुल नेचर, और पॉपुलर माइट बी विथ सम perfect nature. Similarly, powerful, there will be so personalities would be there. One which is coming at the first will be your dominating personality, and which is coming second will be your supporting personality. Because एक आदमी 100% पॉपुलर या 100% पावरफुल या 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, 60-40, 80-20, 90-10, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो एक रेशो हो सकती है। तो आपकी जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, डेफिनेटली आपकी पहली पर्सनैलिटी आपको ज्यादा, आप समझेंगे हाँ मैं ऐसा हूं, थोड़ा सा स्लाइटली सपोर्टिंग पर्सनैलिटी के बिहेवियरल जो एस्पेक्ट्स है, दैट विल आल्सो बी देयर विद यू। So now we know the 4 basic personalities, which is popular, powerful, perfect, and peaceful. What is popular personality? Now I'm giving you strengths and weaknesses of popular personalities, and just relate it. Are you like that? If you are like that, you can check, oh, I might be, under this particular personality. So what are the strengths of popular personalities? They are very optimistic, passionate. What popular personality? They are very optimistic. कुछ भी हो जाए, they are always into optimistic mindset and passion for living. So who is passion for living? यहां पर मैं बता रहा हूं, आप लोग जितने भी लोग हैं यहां पर और जिसने भी थोड़ा बहुत बोला है, चांसेस है कि वो पॉपुलर या पावरफुल पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। You take that other personalities are not good. They are good in their own aspect. But जो लोग यहां बोलेंगे, I'm just giving you a hint,
या जो बोलना चाहते हैं फॉर वट एवर रीजन दे आर नहीं बोल नहीं पा रहे, बट यू आर इंटरेक्टिंग मोर and you are making it more lively, you are into optimistic way, you are under popular personality. Cheerful and bubbling nature, they are always cheerful and bubbling nature, हमेशा हंसते रहेंगे, मिलेंगे, खेलेंगे, गेम्स कुछ होगा तो वो सबसे पहले जाके उस गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे. These are kind of nature they have. Emotions and demonstrative, they are very demonstrative. इमोशनल है बट दे आर वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव. उनके इमोशंस हमेशा उनके फेस पर रहते हैं. इफ आई एम हैप्पी मेरे फेस से पता चल जाएगा, इफ आई एम सैड मेरे फेस को देख के पता चल जाएगा. वेरी वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव. मेक्स फ्रेंड इजीली, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं. तो आप में से कोई है जो फ्रेंड्स बनाता है जल्दी? प्लीज बी इंटरेक्टिव. मैं मेरे ख्याल से बोल म्यूट नहीं किया है. सो व्हाई आई अमित एम जी सेइंग मैं दैट बोल इफ यू तो रहा वांट हूँ. टू, या वेरी गुड अमित वेरी जी, गुड. हाँ जी जल्दी. या मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं पॉपुलर पर्सनालिटी में आता हूँ. जैसे कि नहीं जल्दी नहीं से कोई फ्रेंड्स बात तो नहीं, मैं मैं नहीं नहीं मना बनाता. करता. अभी तो हम पहले दरवाजे पे हैं सर. जैसे जैसे दरवाजे खुलेंगे आपको मालूम पड़ेगा, और आप जब वो एक्सरसाइज या करके भेजेंगे तो डेफिनेटली आपको मालूम पड़ेगा आप किस पर्सनैलिटी के अंदर है. हाँ जी, ग्रेट जितेंद्र जी. ओके, थैंक यू. नाउ लॉट्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, दे हैव लॉट्स ऑफ क्रिएटिव आइडिया. कहीं पर भी कुछ हो आइडिया अगर चाहिए तो क्रिएटिव आइडिया देंगे, ऑर्थोडॉक्स आइडिया नहीं. दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट देन द अदर्स, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बैक. नेचुरल क्यूरियस, क्यूरियोसिटी इनके अंदर इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये कहीं जाते हैं तो इनको लगता है यार इसके अंदर है क्या. इवन इफ सपोज यू आर गोइंग टू ए मॉल वॉशरूम, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और वहां वॉशरूम में अगर मान लो एक कोई डिवाइस रखा है और अगर आपको मालूम नहीं है तो आप 100% कोशिश करेंगे कि वो डिवाइस क्या है पता लगाएं, या कुछ और चीज रखी है तो उसके बारे में पता लगाने की एक जिज्ञासा बहुत रहती है, नेचुरल है इनके अंदर. देन वॉलंटियर फॉर जॉब्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. They are always ready to do jobs, like they are more in social groups and all. So whenever something is coming, they are always participating in that. Because their nature is like that. Life of the party, this is also important. Somebody who is going to a party, and he will definitely going to attract a lot of people with his own personality or with his own communication or whatever way he wants, but he will be the life of the party. He will do some things. Apologize quickly. Yes, they don't have any grudges in the mind. जिसने कुछ बोला कोई बात नहीं, उसने सामने वाले ने सॉरी बोल दिया तो ये बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, और गलती से इनसे कुछ गलती हो गया तो ये बड़ी जल्दी अपोलोजाइज करते हैं अनकंडीशनली. सो दिस इज द नेचर ऑफ पॉपुलर पर्सनालिटी. इट्स ए स्ट्रेंथ. देन स्टार्ट इन ए फ्लैशी वे. जब भी कुछ काम करते हैं बड़ा फ्लैशी वे में काम करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट अट्रैक्शन ऑफ द पीपल. दे डोंट डू समथिंग इन आइसोलेशन. दे ऑलवेज वांट टू बी in the group, in the social platform, and they do the things in a right but in a flashy way. Inspire others to join. Yes, always they inspire others to join. They can't live alone. वो आइसोलेशन में रहने वाले लोग नहीं है, हमेशा चाहते हैं लोग इनके साथ जुड़े, बात करें. सो दे आर लाइक दैट. एक्सट्रोवर्ट, बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं है. ध्यान रखना सर, जो मैं ये यहाँ बोल रहा हूं आप ऑलमोस्ट इसका अपोजिट दूसरी पर्सनैलिटी में पाएंगे, और दूसरी पर्सनैलिटी का ऑलमोस्ट अपोजिट इस पर्सनैलिटी में पाएंगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन ए क्विकर वे. देन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छा. और सेंस ऑफ ह्यूमर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है सर. सेंस ऑफ ह्यूमर तब है जब आप अपने ऊपर हंसना जानते हैं. कई लोग दूसरों के ऊपर बड़ा जल्दी हंसना जानते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई मजाक कर देता है वो बुरा मान जाते हैं, तो दे आर नॉट द पॉपुलर पर्सनैलिटी. सो दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भरा हुआ है इनके अंदर. दे आर वेरी एनर्जाइज पीपल, वेरी एंथुजियास्टिक पीपल. ऑलवेज ए चाइल्ड, हमेशा एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं. इनके अंदर एक बच्चा जिंदा रहता है. इन्हें कॉन्टेक्चुअल वे समझना है. जैसे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, 2 मिनट में वो खुश हो जाते हैं, 2 मिनट में वो नाराज भी हो जाते हैं, फिर वापस खुश हो जाते हैं. तो दे आर बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड. डजंट होल्ड ग्रजेस. जैसे मैंने कहा कि ग्रजेस है ही नहीं, कोई क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है. थोड़ी देर के लिए यस, बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, किसी ने कुछ बुरा भरा बोल दिया तो बुरा लग सकता है, बट आफ्टर सम टाइम दे विल बैक टू द सेम स्टेट ऑफ माइंड. Forgiving, they are very people who forgive very quickly. I'm not saying always, but yes, very quickly. Like spontaneous activity. Spontaneous activity चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको बोला डांस करना है तो पॉपुलर पर्सनैलिटी वाला ज्यादा सोचेगा नहीं कि यार इस गाने पे परफेक्ट डांस होगा, ये होगा, वो शुरू हो जाएगा. चाहे आता है या नहीं आता, अगर वो कर सकता है तो कोई भी चीज है. अगर कोई जोक सुना है, आई थिंक दे विल बी द फर्स्ट पीपल, ओके लेट अस जस्ट डू स्पॉन्टेनियसली. सो दैट इज ए गुड थिंग. Magnetic appealing personality. Their personality is very magnetic and appealing. That always all earlier characteristics suggest that yes, they are like that. Compromising. They are very, very, very quick in compromising. They don't find clashes नहीं चाहिए उनको.
अगर कहीं पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करके बात बन जाती है, ओके लेट्स गो, बट दे आर टीम प्लेयर ना, सो दे कॉम्प्रोमाइज वेरी इजीली. Flexible, obviously these are also the same term, but flexible. Approach is very flexible. Sincere at heart and love people, always love people and sincere at heart. As I told you कि दिल से बड़े भले हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या है, ईर्ष्या जैसी चीजें वो चीजें है ही नहीं इनके अंदर. तो वेरी सिंसियर, अनवरिड, चिंता नहीं करते ज्यादा. चिंता तो खैर आजकल कह नहीं सकते, स्ट्रेस में सारी दुनिया है, बट दे आर मोर और लेस अनवरिड काइंड ऑफ पीपल. दे डोंट बोदर मच. म्यूजिकल, यस, उनको आर्ट पसंद है, म्यूजिक पसंद है, सो दे आर वेरी म्यूजिकल काइंड ऑफ पीपल. ओके, सो नाउ if you have seen all these personalities traits which is called strength, so करीब 20-25 होंगी यहाँ पर स्ट्रेंथ. तो यही मैं पहले बता रहा था कि हम लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारी चीजें मालूम नहीं, और इससे ज्यादा भी हो सकती है. फॉर द प्रेजेंटेशन आई हैव जस्ट कैप्ट दिस, बट व्हेन यू लॉट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, ओके आई एम इनटू दिस पर्सनैलिटी. तो कोई है जिसको ऐसा लगा कि पॉपुलर पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा बहुत आ रहा है? एनीबडी वांट्स टू शेयर? एनीवन? सर अमित जी, इसमें से कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ पर्सनालिटीज के अंदर आ रही हैं, और कुछ ऐसा था कि इसमें जी, से जी, बिल्कुल जी. अपोजिट्स आ रही हैं. तो इसमें से बिल्कुल, ऐसा क्या बिल्कुल, है कि बिल्कुल जैसे सही. 22 हैं, मैं तो कितने हाँ, परसेंट होने पे इस पर्सनालिटी के अंदर आएंगे? ऐसा नहीं, तो नहीं ऐसा है ना कुछ कि नहीं है. 22 मैंने की 22 सबके मैंने अंदर जैसे आपको होंगी बोला, हैं. सबसे पहले हम चार्टर यस. अकाउंटेंट हैं, तो उनसे सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको कैलकुलेट ना करें. वाई वाई आई एम सेइंग दैट. एंड अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात या है. दैट्स हाँ, व्हाई राकेश जी, अमित आप जी, कुछ कह मैंने रहे हैं? बाद में रिपीट करके अमित जी कहा नॉर्मल. जी, जी. राकेश जी, या आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, बट मेरी बात सुनिए. क्या है सर कि इसमें कैलकुलेशन ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि दो पर्सनैलिटीज का मिक्स है. जी, जी. मैं कह रहा हूं दो पर्सनैलिटीज का मिक्स है इसके अंदर. जहां पर दो पर्सनैलिटीज जब मिक्स हो जाती हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपको पॉपुलर पर्सनैलिटी में कुछ चीजें लग रही हैं, यस, और वीकनेस भी आएंगी अभी. तो हो सकता है वो वीकनेस है, हो सकता है वो वीकनेस ना हो. सिमिलरली जब मैं पावरफुल में जाऊंगा या परफेक्ट और पीसफुल में जाऊंगा, तो हो सकता है उसमें से भी आपको मिले. जब आप वो एक्सरसाइज करके देखेंगे, एंड प्लीज डू दैट एक्सरसाइज, इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. कोई, मैं बिना चार्ज के वो एक्सरसाइज करवा रहा हूं. उस एक्सरसाइज के अलग से मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं. वाई? बिकॉज तब आपको फायदा लगेगा, तब आपको इस वर्कशॉप में जो समझ आया है वो समझ में आएगा. वो एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपकी दो पर्सनैलिटीज आएंगी. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स 60, बट यस 50-50 अगर कुछ है, तो दैट मीन्स टू से 50-50 भी पॉसिबल है. ऐसा नहीं है, दोनों की ग्रुप हो सकते हैं, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग हैं. हमारी पर्सनैलिटी को तो भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने. हम जितना कोशिश कर सकते हैं अपने आप को जानना, उतना जान सकते हैं. तो जो दो पर्सनैलिटी है, अगर मान लो पॉपुलर ज्यादा है और सपोज करो पावरफुल का रेशो कम है, तो आपका पॉपुलर बिहेवियर ज्यादा होगा, पावरफुल वाला बिहेवियर कम होगा. या पावरफुल ज्यादा है और साथ में उसके परफेक्शनिस्ट है, तो हो सकता है परफेक्शनिस्ट कम होगा, पावरफुल ज्यादा होगा. बट एज वी गो अलोंग, that will be definitely helping you in that. So now I'm moving ahead with weaknesses. What are the weaknesses? Compulsive talker, loud voice, repeats story. Now question comes, जो पॉपुलर पर्सनैलिटी है वो कंपल्सिव टॉकर होते हैं, बहुत बोलते हैं. तो जब वो बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो एक वीकनेस माना जाता है. बट एज मैंने बोला, ये कोई वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है. दिस इज द नेचर ऑफ आवर पर्सनैलिटी. दिस इज द नेचर ऑफ आवर पर्सनैलिटी. ओके, सो नाउ सेकंड इज लाइक एग्जैजरेट. पॉपुलर पर्सनैलिटी वाला क्या होता है, जब वो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा लाइव रहते हैं, बहुत ज्यादा बबली नेचर के, कई बार वो एग्जैजरेट कर देते हैं. दिस इज नॉर्मल थिंग. समटाइम यू सी पीपल बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है कोई चीज, यस ही माइट बी ए पॉपुलर पर्सनैलिटी पर्सन. उसका नेचर है, कोई गलत नहीं है, ही इज लाइक दैट ओनली. इनकंसिस्टेंट, बिकॉज उसका कोई रोड मैप नहीं है, बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बबली इन नेचर है, एंजॉय करने वाला है. समटाइम इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जाता. अगर आप देखेंगे जब परफेक्ट पर्सनैलिटी पे हम पहुंचेंगे, दे विल बी मोर कंसिस्टेंट. सो दिस काइंड ऑफ नेचर ऑफ दैट. कांट रिमेंबर नेम्स, फॉरगेट्स ड्यूटी. अगर आपका कोई दोस्त, आप या कोई भी है जो जल्दी नाम याद नहीं रहता, जैसे मिल जाते हैं कई बार, बहुत से दोस्त मिलते हैं, ये चैप्टर में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं. समटाइम भी, ओ यार फेस तो याद है पर नाम याद नहीं आ रहा, समझो कहीं ना कहीं वो पॉपुलर पर्सनैलिटी का रखने वाला है. फॉरगेट्स ड्यूटी ऑल्सो, समटाइम जब नाम याद नहीं है, कई बार घर से पता चला बहुत सारे 4-10-15 चीजें लाने के लिए बुझी और लिस्ट नहीं दी, तो हो सकता है आप 5-6 चीजें भूल जाते हैं. इमेच्योर एंड चाइल्डिश, यस इमेच्योर एंड चाइल्डिश, बिकॉज चाइल्ड है इनके अंदर. सो उसको वीकनेस में अगर कोई देखेगा, जो वीकनेस नहीं है, मैंने पहले बोला, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. इफ समबडी इज देयर फॉर पॉपुलर पर्सनैलिटी, you are great. If somebody is here with perfect personality, you are also great. So nobody is saying that no, I am bad or you are great, but this kind of things
comes because of your nature of personality. Sometimes immature होते हैं, थोड़ा childish behavior कर देते हैं, gets angry in year, as मैंने बोला, बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं, बड़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. Yes, नेचर है. Is to be alone, अकेले नहीं रह सकते. जब अकेले नहीं रह सकते मतलब they want sociality, they want people around them. बीमार भी होते हैं तो भी उनको लगता है कि यार कुछ लोग आ जाएं, अड़ोसी पड़ोसी आ जाएं, देख देख ले आ जाएं, बिकॉज वो अकेले रहने वाले लोगों में से नहीं है. लैक ऑफ फोकस डिसऑर्डर, फोकस नहीं है, वो वैसा फोकस वाला नहीं है कि बिल्कुल परफेक्शनिस्ट के साथ तरह काम करने वाला. दैट्स व्हाई अगर पॉपुलर पर्सनैलिटी है वो परफेक्ट नहीं हो सकता. मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताऊंगा. तो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, डोमिनेट कन्वर्सेशन, इंटरप्ट एंड डजंट लिसन आंसर फॉर अदर्स. ये भी एक वो है, डोमिनेट है. क्यों? क्योंकि पॉपुलर वाला जो आदमी है वो चाहता है मैं बोल रहा हूं तो ठीक बोल रहा हूं. पावरफुल में ये चीज और भी ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखिएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया हाउ पावरफुल पर्सनैलिटी वुड बी देयर. सम सॉर्ट ऑफ पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, बट पावरफुल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है. ये डोमिनेट्स हैं. कैसे डोमिनेट है? ये रोकेंगे नहीं किसी को, लेकिन ये बीच में बोलेंगे जरूर, क्योंकि बोलना इनकी आदत है. ठीक है. लेट ऑफ एवरीथिंग, हमेशा लेट करते हैं. तो अगर आप लोग कहीं लेट हो जाते हैं तो एग्जाम टाइम में तो ऑब्वियसली लेट नहीं हो सकते, बट इन जनरली अगर आप कहीं ना कहीं लेट होते हैं, समवेयर यू आर पोजेसिंग पॉपुलर पर्सनैलिटी. ओवर स्पेंड्स, खर्चा ज्यादा करते हैं, अपने पे करें या परिवार पे करें या दोस्तों पे करें, बट खर्चा ज्यादा करते हैं. कांट थिंक अहेड, नेवर प्लान, सोचना तो मतलब ही नहीं है, प्लानिंग तो बिल्कुल है ही नहीं, तो प्लानिंग नहीं करते. यस, जो चल रहा है एक दो वीक के लिए थोड़ा बहुत प्लान करते हैं, बट दे डोंट थिंक मच अबाउट अहेड. व्हाट इफ दे आर मोर इन प्रेजेंट. मैसी, थोड़े से मैसी हैं क्योंकि परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो रहता है. स्पीक्स एक्ट विदाउट थिंकिंग. यस, समटाइम स्पीक और एक्ट विदाउट मच थिंकिंग. कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, बट दे आर लाइक दैट. हाइपर सेंसिटिव अबाउट व्हाट अदर थिंक अबाउट हिम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पार्टी की जान है, वो सबको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कई बार बड़े हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं. यार मेरे बारे में क्या सोचता होगा, हाँ आई एम लुकिंग, मैं ये पहन के अच्छा लग रहा हूं नहीं लग रहा, 10 बार पूछेंगे. तो दैट इज लाइक देयर नेचर. कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टांसेस एंड डिसाइड बाय फीलिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर डेफिनेटली कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टांसेस. आई एम इन ऑफिस, तो मेरा ऑफिस में जैसा बिहेवियर है, जो पॉलिसी मुझे रहना है, लेकिन डिसाइड बाय, ऑलवेज जो डिसीजन लेते हैं वो दिल से लेते हैं. तो जो दिल से डिसीजन ले रहा है काफी हद तक पूरा भी हो सकता है और कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलर पर्सनैलिटी उसके अंदर हो सकती है. कॉन्फिडेंस फेड्स फास्ट, बहुत जल्दी. जब आप ज्यादा एक्सजरेट कर देते हैं, ज्यादा कमिट कर देते हैं, ओवर कमिट कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो चीज नहीं हो रही, तो बड़ी जल्दी कॉन्फिडेंस भी फेड हो जाता है. दैट इज नेचर. सेल्फ फोकस, ये सेल्फ फोकस्ड है, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दे आर वेरी सेल्फ फोकस्ड पीपल. नीड्स टू बी सेंटर ऑफ स्टेज, वांट्स टू बी पॉपुलर. दैट इज एट वन टाइम इट इज स्ट्रेंथ, बट इट इज वीकनेस ऑल्सो. हर बार सेंटर ऑफ स्टेज बनना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है मौका ना मिले. मौका ना मिले तो ये थोड़े फ्रस्ट्रेट हो, यार इस मीटिंग में गया लेकिन मुझे तो पूछा ही नहीं किसी ने, और समथिंग लाइक दैट. दैट हैपेंस. लुक्स फॉर क्रेडिट, ऑलवेज लुक्स फॉर क्रेडिट. यस, क्रेडिट जरूरी है. ऐसा नहीं कि कर्म किया और फल की चिंता छोड़ दी, नहीं, कर्म किया तो फल भी मिलना चाहिए, और दैट इज ओके, जरूरी है. सो दिस इज डन विद popular personality. So anybody, I'm not saying that let's share or whatever, but you may think what kind of strengths are there, what kind of weaknesses are there, and believe me, these 40 are not weakness or strength. Somewhere these are your strength. For others it may be weakness or strength, but for you it is your nature. Okay, so now moving on to the powerful personality. Any question on popular personality? If somebody wants to ask, most welcome, otherwise we'll move ahead. So we are moving ahead अमित to जी, the next personality. अमित जी, हाँ, sorry. जो Yes, सेशन का मेन पर्पस था पर्सनैलिटी टू परफॉर्मेंस, Yes. जो सेशन से आई थिंक वी वुड लाइक टू गेट इट फ्रॉम दिस सेशन, बट हियर आई थिंक Yes. वी आर ऑन, यू आर ओनली एक्सप्लेनिंग दैट कि व्हाट इज द पर्सनैलिटी टाइप एंड व्हाट इज द प्रोस एंड कॉन्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दोस. Are we going to know that from this So I'm giving you a personality context how on we it. will go for a performance also? Yes, definitely, sir. Definitely. Tell me one thing. What is our performance? How our performance depends? What are the content of our performance? The main content of the performance and that ki whatever the major qualities we have, we will perform, we Yes. will improve Yes, those or where. yes, yes. Very true, very true. So, actually, क्या है? This is not an income tax session, for example. I'm just giving you a context. है? Even for income tax, even for accounting, even for my own personal life or whatever way, my performance depends on me.
right? With obviously circumstances Yes, and all, yes, but it depends yes, on me, how I'm performing, है ना? So my yes. performance, अगर मैं देखूं, if you know, we all are gone through with GMCS session. I'm just giving in a just for example. GMCS सेशन जो था अपना, जब हम लोग सीए बने और हम बन रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक सेशन बनाया. What was the reason at that time? Because when I qualified in 2005, तो उससे पहले 2002 में ही स्टार्ट हुआ था. सर मैं And the reason 2002 में for that, क्वालिफाई हुआ हूं, तो आई डोंट नो दैट सेशन अबाउट टू हाँ, मच. मैं 2005 में हुआ सर, तो मेरे लिए कंपलसरी कर दिया, मैं जॉब करने लगा था. यस. I was doing my job इंटर में, और फिर मैंने फाइनल जॉब के साथ साथ किया. एट दैट टाइम उन्होंने बोला 15 दिन का जीएमसी सेशन कंपलसरी है, अदरवाइज आपको सीए की डिग्री नहीं मिलेगी. यू नो, सो व्हाई दैट वाज द नीड फॉर दैट टाइम. द नीड वाज, इफ यू बिलीव मी सर, और मैं नहीं कह रहा कि ये 100% करेक्ट है, बट मोर और लेस इट इज करेक्ट. अगर हम एमबीए या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज की बारे में बात करते हैं, वहां कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, मे बी बेसिक नॉलेज कम होती है. यस, But in यस, यस. CA, the basic knowledge is very much high, but communication is almost poor. Please don't ऑलमोस्ट take it otherwise. ऑलमोस्ट नील है. No, है ना? तो आप समझिए बात को. तो जीएमसीएस की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई आपके पास नॉलेज तो बहुत है, पर आपको जब नॉलेज को दिखाना है, वहां पर आप थोड़ा फेल हो जा रहे हैं. एक यस, सेमिनार में बोलना है, वहां नहीं बोल पा रहे हैं. कोई भी 10% Yes. बोलते होंगे, 90% नहीं बोलते. यस. तो वो जीएमसीएस या इस तरह की कोई सेशन की जरूरत पड़ी. व्हाट वाज द पर्पस? सर मुझे भी इनकम टैक्स मालूम है, और इनकम टैक्स रटने की भी जरूरत नहीं, किताबें अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके आर्टिकल्स अवेलेबल हैं. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ आई कैन कम्युनिकेट बेटर, बिकॉज आज की डेट में कम्युनिकेशन इज द की सर. कम्युनिकेशन इज द की एंड क्रिएटिविटी इज द की. चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो. हाँ, लिमिटेशंस हैं. डॉक्टर ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, बट वो कहीं और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, बट वो रिपोर्टिंग में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. सो वट एवर वे, बट कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नॉलेज है, बहुत जरूरी है. नॉलेज के साथ ये, तो जब मैं ये पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं, व्हाई आई गिवन दिस टॉपिक. सक्सेसफुल, क्या सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुल है सर? नहीं, सभी नहीं है, अलग अलग लेवल पे उसका हैं सभी. रीजन, हाँ, उसका रीजन क्या है? बहुत हद तक उसका रीजन है जो आपकी आउटर पर्सनैलिटी है, या जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है. समटाइम्स यू कैन नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, इवन इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, यू कांट गेट दोस अपॉर्चुनिटी प्रॉपर वे. कम्युनिकेशन, मुझे बताइए, कम्युनिकेशन वन वे होता है या टू वे होता है? टू वे रहेगा सर हमेशा ही. हमेशा टू वे तो रहेगा मिनिमम. यस. वन वे हो सकता है जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, बट दैट इज आल्सो टू वे. Two समबडी way, इज yes. इनसाइड, समबडी इज आउटसाइड, है ना? यस. टू वे कम्युनिकेशन है. तो जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, बेशक वो बेसिक नॉलेज में थोड़ा कच्चा हो सकता है सर, बट ही विल ऑलवेज बी सिटिंग एट ए लीडरशिप पोजीशन. बिलीव मी और नॉट, यस, दैट्स हमेशा राइट. लीडरशिप पोजीशन में. तो क्या होता है, जब ये पर्सनैलिटी हमें मालूम पड़ती है, तो ये पर्सनैलिटी जो मैंने ये कोर्स, मैंने भी ये सीखा है आज से 6-7 साल पहले. मैंने जब इसके बारे में जाना समझा, तो मैंने ये वर्कशॉप तैयार की. इसका रीजन क्या है? जब हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम है, जब मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के मालूम है, उससे ज्यादा जब मुझे दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मालूम है, तो मैं कम्युनिकेशन बेटर कर सकता हूँ. सपोज करो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक प्रेजेंटेशन बनाया बहुत अच्छा, हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाया, छोड़िए बॉस को भी छोड़ देते हैं. मैं अगर कभी टाइम मिला तो मैं एनएलपी के ऊपर कोई सेशन जरूर लूंगा. एक टर्म कहलाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, एंड इफ Yes. यू कैन गूगल इट, यू कैन सर्च इट. होता क्या है सर? द पीपल, वी आर ह्यूमन बीइंग, व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो पीपल से जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो नंबर्स काम नहीं आएंगे, काम आएंगे बाद में. पहले समझ में आएगा वो आदमी क्या चाहता है, हम उसको क्या दे सकते हैं. सेल्स जो है, सेल्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट वंस यू नो योर कस्टमर बेटर, राइट? यस. तो हाउ यू वुड नो योर कस्टमर बेटर? वो कोई ना कोई पर्सनैलिटी का आदमी होगा ना. तो दिस इज वेरी सिंपल वे, पॉपुलर, पावरफुल इन दिस. बट इन एनएलपी बहुत टेक्निकल वे में जाते हैं. वहां एक काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी होता है, एक ऑडिटरी पर्सनैलिटी होता है, एक विजुअलाइजेशन वाला पर्सनैलिटी होता है. सपोज करो मैं ऑडिटरी पर्सनैलिटी वाला हूं, तो मुझे सुनना ज्यादा पसंद आता है बजाय देखने के. मुझे वो दिखा रहा है, ये पिक्चर देखिए सर, ये ग्राफ देखिए सर, ये देखिए, ये बायोडेटा देखिए, ये देखिए कलर, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा. क्यों? मैं ऑडिटरी पर्सनैलिटी वाला आदमी हूं. और सेल्समैन मुझे सिर्फ सुनाता है, सर इसके ये फीचर है, ये है, ये है, ये है, बोलता जा रहा है, वो कुछ नहीं दिखा रहा विजुअलाइज, और मैं ओ मुझे ये गाड़ी लेनी है. यू गॉट माय पॉइंट? यस. व्हाई? बिकॉज आई एम सो, हर एक आदमी सर, हर एक आदमी जो है वो एक यूनिक पर्सनैलिटी का मालिक है. अगर मुझे अपनी पर्सनैलिटी मालूम है और मुझे पता है, मुझे दूसरे के बारे में नहीं पता, या मुझे अपने बारे में भी नहीं पता, तो मैं जब कम्युनिकेशन करूंगा, वो कम्युनिकेशन तो होगा, बट दैट विल नॉट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एंड व्हाट इज द वे ऑफ सक्सेस? The way of success is how effectively you communicate. Simple.
कोई कहता है इसके अलावा नहीं है तो सर वो गलत हो जाएगा। हम थ्योरी पढ़ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम रिटर्न भरते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं सीए के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम हैंडलिंग ए टीम ऑफ मोर देन 50 पीपल। जो खाली फाइनेंस नहीं है, वो ऑपरेशंस भी मेरे साथ है। तो ऑपरेशन है, प्रिक्योरमेंट है, सब कुछ है। मैं एसएमसी लीडर भी हूँ। वहां पर भी बैठना है, जब हम टेबल पे बैठते हैं सर, जहां बहुत सारे आप सीनियर हैं, आप बैठते हैं, जब डिप्लोमेटिक टास्क टॉक्स भी होती हैं बहुत सारी। बट इन दैट डिप्लोमेटिक टॉक, हाउ वुड यू असेस द अदर्स when you are in the group, when you are speaking in their language, but you are speaking what you want to speak, but in their language? That is important. So how you would know when you know, oh, my boss is of powerful personality? When you go and get the benefit, the nature of powerful personality, then you will dig in the last slide. In a very brief, I am just explaining that also. Is it fine, sir? Can I go ahead? Yeah, sure. Thank you, sir. Sorry for Sure. interrupting in between, but No. Very important, sir. This is very important. We should Yes. know what is the purpose. yeah, Two what hours is are the very important. yes, The 2 hours are very important for chartered accountants, especially. So I'm trying my level best that this is something which is out of the context, out of our repeated things what we are doing. If we at least master these things, definitely there would be a change. yes. So now I'm going to powerful personality. So in powerful personality, the strengths are optimistic. They are also optimistic and passionate for living personalities. Powerful and popular. I'm saying now they are almost like same, but some things are same, which I just explain here, make friends easily, etc. But this is important. In popular personality, yes, leadership quality is there, but in powerful personality, it is the base. पावरफुल जो भी लीडरशिप क्वालिटी लेकर बैठा है 100% वो पावरफुल पर्सनैलिटी वाला है. एंड देन इफ समबडी इज हियर इन दिस ग्रुप ऑल्सो, प्लीज ट्राई टू इन्वॉल्व, प्लीज ट्राई टू चेक ओ व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू. डायनेमिक एंड एक्टिव, दे आर वेरी डायनेमिक एंड एक्टिव. बहुत एक्टिव है सर, उनको काम बोलो या उनको पता चले काम करना है, दे विल बी द फ्रंट लीडर. एबिलिटी टू टेक चार्जेस ऑफ एनीथिंग इंस्टेंटली, वेरी 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 एबल टू टेक चार्जेस. आपने देखा होगा आपके ग्रुप में कभी कुछ होता, चलो यहां पर एक प्रोग्राम बनाते हैं पिकनिक का, यू वुड definitely realize that somebody would be there who is taking lead automatically. Understand that he might be possessing powerful or popular personalities. Goal oriented, very goal oriented. Unlike popular personality, they are not focused. Powerful personality में क्या हुआ, वो goal oriented, they are very focused. उनको पता है यहां पर है, इतने बजे पहुंचना है, ये है टाइम, very good. तो goal oriented. Decision making skill, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिए जाते हैं सर, और जिनके डिसीजन माने जाते हैं, बिलीव मी, समवेयर दे आर possessing powerful personalities. इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट. उनको जरूरत नहीं है, जैसे पॉपुलर पर्सनालिटी सोसाइटी में रहने वाला है, अकेला नहीं रहता. पावरफुल पर्सनालिटी इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, वो सेल्फ डिसीजन में चलता है बिकॉज ही हैज डोमिनेटिंग पावर. एक्सेल इन इमरजेंसी, एक और बहुत अच्छी चीज है, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, द पीपल हु आर स्टिल अहेड एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दे आर हैविंग ए पावरफुल पर्सनालिटी. कंपल्सिव नीड फॉर चेंज, हमेशा उनको चेंज चाहिए, एक जगह स्टेगनेंट नहीं रह सकते. तो जो भी लीडर होते हैं आप देखेंगे कहीं पर भी, लीडर्स इज ऑलवेज गोइंग फॉर चेंज चेंज चेंज. दैट इज वेयर द ग्रोथ एसेंशियली लिव. मस्ट करेक्ट रोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो कितनी भी ग्रुप में बैठे हैं, अगर कोई गलत बोल रहा है या गलत कुछ चीज बता रहा है, लीडरशिप पर्सनैलिटी वाला, जो पावरफुल पर्सनैलिटी वाला, वो एक बार उसको बोलेगा सर ये गलत है. दिस इज देयर नेचर. नॉट इजीली डिस्करेज, बहुत जल्दी डिस्करेज नहीं होते. जैसे कई बार पॉपुलर पर्सनैलिटी वाला डिस्करेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज ऑल ट्रेट्स विच आर नॉट इन दिस पर्सनैलिटी, बट पावरफुल पर्सनैलिटी वाला डिस्करेज जल्दी नहीं होता. सीक्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ऑलवेज सीक्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. थ्योरी से ज्यादा मतलब नहीं है. व्हाट इज द आउटपुट? सो whoever the leader who is always working, what is the output here, what is going to be the, how it is going to be implemented. Everything on paper will not make him happy. Yes, implementation will make him happy. क्विक थिंकर, बहुत जल्दी सोचते हैं. हाँ, आप क्वेश्चन पूछिए, इमीडिएटली उनके दिमाग में आंसर होगा उसका, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लर्नड पीपल. वर्क्स हार्ड, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, शांत बैठने वालों में से नहीं है. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. गुड फॉर बिजनेस एंड बिजनेस के लिए गुड है. ज्यादातर लोग जो लीडरशिप क्वालिटी, पावरफुल पर्सनैलिटी, वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बने होते हैं, वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, या फिर वो सीईओ वगैरह पोजीशन पे होते हैं. स्टेट टॉक्स, नो बकवास जो हम बोलते हैं वो इनकी है, बिल्कुल स्टेट. इनको ज्यादा घुमा फिरा के बातें करनी पसंद नहीं है, सीधा सीधा बात की. परसुएसिव, अंडरस्टैंडेबल, दे आर वेरी परसुएसिव एंड अंडरस्टैंडेबल है. ऐसा नहीं कि पावरफुल है, लीडरशिप है तो वो किसी की सुनते नहीं, नहीं समझते हैं, बट करेंगे वही जो ये करेंगे. मल्टीटास्कर, दे आर वेरी मल्टीटास्कर पीपल.
कमिटमेंट टू फेथ, ऑलवेज अगर इनके साथ अच्छा फेथ ट्रस्टवर्दी रिलेशन बनाए, दे आर वेरी कमिटमेंट विद देम। कॉन्फिडेंस, ऑलवेज शोज कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर दिखता है। सीज द होल पिक्चर एंड इंसिस्ट ऑन रिजल्ट, यस पूरा पिक्चर देख लेंगे सब कुछ। जैसे मैंने बोला आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, खाली थ्योरी से नहीं चलेगा, आपका आउटपुट क्या है वो बताना जरूरी है। ऑर्गेनाइज वेल एंड डेलीगेट्स वर्क, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ऑर्गेनाइज है, डेलीगेट करना जानते हैं, पावरफुल आदमी है, काम बहुत है, सीईओ पोजीशन पे है, क्या करेगा, सारे काम वो नहीं कर सकता। ही नो हाउ टू डेलीगेट वर्क, हाउ टू लीड ए टीम। थ्राइव्स ऑन अपोजिशन, ऑलवेज थ्राइव्स ऑन, अगर कोई अपोजिशन में है, अपोजिशन मतलब ट्रू सेंस में अपोजिशन है, ही विल जस्ट मेक हिज लाइफ ऑल्सो हेल, बिकॉज उसको पसंद नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक एंड एक्सट्रोवर्ट, काफी ऑप्टिमिस्टिक है, एक्सट्रोवर्ट है, लाइक अपने पॉपुलर पर्सनैलिटी की तरह, तो काफी मैचेस है, बट कुछ कॉन्ट्रास्ट है। स्ट्रॉन्ग विल्ड नेचर, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ चलते हुए है। वीकनेसेस भी देख लेते हैं। बॉसी डोमिनेट्स अदर्स, बॉसी है जिसे हम कहते हैं ना बॉस और लीडर, तो लीडर में दोनों पर्सनैलिटी होनी चाहिए, पॉपुलर और पावरफुल दोनों मिले तो अच्छा लीडर बन सकता है। पर खाली पावरफुल है तो थोड़ा सा उसका डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है, बॉसी हो जाता है। फाइंडिंग डिफिकल्ट टू हैंडल पीपल समटाइम बिकॉज ऑफ हिज नेचर, ये चाहिए मतलब चाहिए, तो लोग सबको इसको फॉलो करेंगे ऐसा नहीं है ना। So people also want behavioral approach, but if you already going with a professional approach, no, this is this, so your team will not be always supporting you. Can't relax, compulsive worker, रिलैक्स नहीं रहते, कंपल्सिव वर्कर करते रहेंगे कर, और सेम ये दूसरों में भी चाहते हैं, तो वहां पर कई बार कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इम्पेशेंट एक्टिंग एंड हैस्टी, इम्पेशेंट है और थोड़ा सा हैस्टी एक्ट करते हैं। डिसलाइक टीयर्स एंड इमोशंस ए बिट, मीन्स इनके सामने कोई रोएगा तो इनको पसंद नहीं आएगा। हाँ, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, दर्द है, दुख है, बताइए, बट डोंट बी इमोशनल बिकॉज दे आर नॉट इमोशनल पीपल इन दैट सेंस। क्विक टेम्पर्ड, लिटिल टॉलरेंस फॉर मिस्टेक, जल्दी बुरा मान जाते हैं। आपके बॉस अगर मान लो है या आप खुद हैं, तो अगर आपको किसी ने कोई गलत चीज दी या गलत फिगर पकड़ा दी कि ये है और बाद में पता चला कि मिस्टेक है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा आता है जल्दी। इंजॉय कंट्रोवर्सीज लाइक टू आर्ग्यू, को कोई बोलना है, लीडरशिप है, तो कई बार ये लोग कंट्रोवर्सीज में ज्यादा मजा आता है इनको, क्योंकि वहां आर्ग्यू करने का मौका मिलता है। नीड्स क्रेडिट फॉर अचीवमेंट, डेफिनेटली दे आर ऑल्सो people who need credit for achievement. If they have done well, and they deserve it also. When they did it good, then definitely they need credit. Knows everything may be right but unpopular. ये कहते हैं आई नो एवरीथिंग, तो हो सकता है बिकॉज ये लर्नेड पीपल है, पावरफुल है, लीडर है, बट हमेशा नहीं चलता। स्टबर्न एंड रिजिड है बिकॉज ऑफ देयर नेचर, दीज क्वालिटीज आर ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड क्वालिटीज। इंसल्टिंग, कई बार ये बातचीत करते समय कब किसी को इंसल्ट कर दे इनको खुद मालूम नहीं पड़ता, तो समटाइम पॉपुलर पर्सनैलिटी, पावरफुल पर्सनैलिटी वाले लोग जो हैं थोड़ा सा इस टाइप के होते हैं। डजंट एक्सेप्ट अदर्स आइडिया, एज आई टोल्ड यू दैट दे आर द ओनली डिसीजन मेकर, they can listen to you but don't accept your idea, maybe in other way they will present it like this is my idea or this is how I want, because they have that power, so generally they do not accept others idea. Free advice, obviously powerful है और followers बहुत हैं तो free advice भी देते हैं। They must be in controlling side, हमेशा ही वो controlling side में आने चाहते हैं, अगर controlling side में है तो ही इनको अच्छा लगता है, following side में कम होते हैं। अटैचिंग वैल्यूज इन एवरीथिंग, हमेशा हर चीज के साथ वैल्यू ऐड करते हैं, ओके इसका कॉस्ट इतना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा करते हैं। डजंट एनालाइजेस डिटेल्स में मेक रैश डिसीजन, समटाइम बिकॉज पावरफुल है, मेरा ही डिसीजन सबसे अच्छा है, ज्यादा एनालाइज नहीं करते, क्विक डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कई बार गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। नो टाइम फॉर रिलेशनशिप, ऑब्वियसली रिलेशनशिप वाली चीजें, इमोशनल चीजें जो है वो इनके साथ इतने ज्यादा नहीं होती है। एंड जस्टिफाइज द मीन, बस आउटपुट जस्टिफाइज द मीन्स, क्या रिजल्ट है वो जस्टिफाई करता है, सो दैट इज देयर। एटीट्यूड, इफ आई कांट विन आई वोंट प्ले, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज पावरफुल आदमी जो है वो अपनी इंसल्ट फील नहीं कर सकता, मैं पावरफुल हूं, मैं कंट्रोलिंग हूं, तो वो वही गेम खेलते हैं जिसमें वो जीत सकते हैं। अगर कोई गेम में उनको लगता है डाउट है यहां मैं जीतूंगा नहीं, दे विल नेवर प्ले दैट गेम, दिस इज जनरली द एटीट्यूड। कांट से आई एम सॉरी, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलाइक पॉपुलर हु इज so who can say sorry unconditionally, powerful can't say sorry that easily, sometimes yes but normally they don't। unwilling to give credit to others, obviously दूसरों को जल्दी क्रेडिट नहीं देते, some people might be but generally नहीं देते। over committed
एंड लेट। जैसे मैंने बोला कि वो ओवर कमिटिंग है, बिकॉज पावरफुल है। अगर उसको आपने कुछ बोला सर ये काम करिए, वो जल्दी से, आपने अगर उसको थोड़ा सा भी बोला कि प्यार से कि सर ये काम चाहिए, आप ही कर सकते हो, ही विल डेफिनेटली कमिट। तो समटाइम वो कमिटमेंट ओवर भी हो जाती है। ओके, सो now you know popular and powerful personality, and you know there are certain personalities of both are common as well, in when weaknesses are common. Just keep in mind, पॉपुलर एंड पावरफुल पर्सनैलिटी, अगर आपने पर्सनैलिटी टेस्ट किया और आपको पर्सनैलिटी रिजल्ट आया पॉपुलर एंड पावरफुल विद ऑब्वियसली मार्क्स, if popular ज्यादा है, that means to say you are possessing more of popular personality quality but some qualities of powerful personality, and they gel together. Powerful popular can also be like that. You may possess more powerful quality but some popular personality qualities are there, so popular and powerful can go together. As you told, someone asked that what would be the ratio. As I told you, all personalities are unique. Even popular personality 50-50, 60-40, 70-30 or vice versa, doesn't matter. This is your own personality. The way I have explained that these are the nature of your personality. So if you are into any of these personality, try to recall. Okay, I'm like that, and believe me, you are not bad. You are good, as good as other, because this is your personality. What you may not like, where weaknesses are coming, sometimes overcommitment. So when you know, oh, I am a personality who can overcommit, okay, let me just stop myself. So this way you can help yourself. And once you are a bit balanced in your professional life, I'm saying, but don't try to change. Even if you are overcommitting, you have a leadership quality, you can even fulfill that. So don't like, oh, this is wrong, this is right. Don't calculate. Okay. So I'm just going to the next personality, which is perfect personality. So perfect personality, I'm just giving you an idea. A powerful personality cannot be a popular personality cannot be a perfect personality. Keep in mind. Similarly, a peaceful personality cannot be a powerful personality. So this is the contradiction. Always in your all working what personality you will get, very rare chances that all four are there. Some sort of percentage here and there might be there, but 100% it won't be there because their nature is totally different. It's like water and fire. Okay, so perfect personality. What are the strengths of perfect personality? Strengths: deep and thoughtful. These are the people who are deep and thoughtful. Perfect है ना, बहुत डीप जाएंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, तब जाके कुछ काम बनाएंगे आगे, which is a good thing. Thirst for knowledge. They always wanting to gain knowledge. जो भी हमारे सीए मेंबर्स हैं, जिनके पास डिग्रीज बहुत सारी हैं, कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, चांसेस है यू आर बिलोंगिंग टू परफेक्ट पर्सनैलिटी, बिकॉज आपको नॉलेज गेन करने में अच्छा लगता है. Sensitive to others, very sensitive to others. They are perfect, that's why they know, okay, this is right, this is wrong, whatever. So very sensitive to others. Analytical, नाम से ही पता है, बहुत एनालिटिकल है. They can't take decision like this. They analyze each and every part, even at micro level. Organizational skills, planning, schedule, oriented. They have organization skill because perfect है, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं और शेड्यूल करते हैं. Patient and persistent. Unlike popular and powerful, they are impatient. They are the people who are very patient. Avoid attention. इनको अटेंशन नहीं चाहिए. पॉपुलर वाले को क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए. लोग देखें मुझे, लोग मुझसे बात करें. परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला कहीं कोने में बैठे होंगे या बहुत कम लोगों के साथ होंगे, बिकॉज दे अवॉइड अटेंशन जनरली. परफेक्शनिस्ट, नाम से पता है तो परफेक्शनिस्ट है. आमिर खान हो गए जैसे, फॉर एग्जाम्पल. प्लान्स अहेड, हमेशा आगे के लिए प्लान करते हैं. अनलाइक पॉपुलर, जो कि एक वीक से ज्यादा प्लान नहीं करता. दे आर टोटली अपोजिट. प्लान्स अहेड, ऑलवेज प्लान्स अहेड. पंक्चुअल, वेरी पंक्चुअल, लेट नहीं होते कहीं पर भी, टाइम पे पहुंचना है. रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट्स, इनको याद रहती है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ फेज, उनको बिल्कुल याद नहीं रहती. तो आई एम गिविंग यू कंटेक्स्ट सो दैट यू शुड रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ पीपल, पॉपुलर पर्सनैलिटी और पावरफुल पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ परफेक्ट पर्सनैलिटी पीपल आर देयर. आइडियलिस्टिक सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत आइडियलिस्टिक है, स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट करते हैं, छोटे मोटे नहीं. तो परफेक्टली जिसमें भी देखेंगे आप, बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं. कीप थिंग्स इन ऑर्डर, हमेशा उनकी जो चीजें हैं वो बड़ी ऑर्डर में रखी रहती है, सजी हुई तरीके से रखी है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन स्किल है. Economical, very economical. Unlike they are overspent people, they are very economical people. Economic, not I'm not saying कि कंजूस है, पर economical है.
सीज द प्रॉब्लम्स, कैन फोरसी पॉसिबल प्रॉब्लम। ये एक स्ट्रेंथ भी है और आगे चल के ये वीकनेस भी बन जाती है, बट स्ट्रेंथ में समझे इनको प्रॉब्लम बहुत जल्दी नजर आती है। कोई चीज चल रही है तो इनको पता हो यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है यहाँ पर, बिकॉज ये परफेक्शन पे चलते हैं। उनको कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज, कोई भी गलत रास्ते की चीज बड़ी जल्दी ये भाप लेते हैं कि यस सम प्रॉब्लम आर देयर, सम प्रॉब्लम माइट बी देयर। नीड्स टू फिनिश व्हाट इज स्टार्टेड, ये बहुत अच्छी चीज है। जो इन्होंने एक बार स्टार्ट किया उसको ये खत्म करके ही सांस लेंगे, खत्म करेंगे ही करेंगे। सो दे आर नॉट पीपल, सो दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल, स्पेशली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स व्हाट कमिटमेंट दे हैव गिवन दे विल फुलफिल दैट कमिटमेंट। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, हमेशा सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि यस थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज परफेक्ट है, तो इनको कई बार अपनी खुद की चीजों को सेल्फ, यानी पार्टीज में कम जाएंगे, अरे काम बहुत है, यहाँ कम जाएंगे, सोशल गैदरिंग में कम जाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ काम अटका हुआ है, तो सेक्रीफाइस करते हैं किसका? सेल्फ के लिए। बीइंग टैलेंटेड एंड डीपली क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव ये लोग भी होते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, नॉट ओनली क्रिएटिव बट वेरी टैलेंटेड। सीक्स द आइडियल मेट, ये बहुत चक्कर है, मुझे नहीं मालूम हमारे इस ग्रुप में कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं या कितने अभी ढूंढ रहे हैं, पर अगर परफेक्ट पर्सनैलिटी वाले हैं तो भाई कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि आइडियल मेट ढूंढने में ये बहुत टाइम लगाता है। इससे गलती नहीं है, इनको हमेशा कोई ना कोई परफेक्ट चाहिए, तो परफेक्ट के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। इंट्रोवर्ट, अनलाइक पॉपुलर एंड पावरफुल पर्सनैलिटी दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, दीज पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट। इनकी बातें अंदर रहती है, बाहर बहुत कम निकलती है। बीइंग आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पावरफुल पर्सनैलिटी जो है वो परफेक्ट पर्सनैलिटी बन सकता है, पावरफुल पर्सनैलिटी म्यूजिकल है, ये भी म्यूजिकल है, फिलोसफिकल है, बट यस उस लेवल पे नहीं है, बट यस अच्छा लगता है इनको भी। गुड फॉलो, फॉलो बहुत अच्छा है। अगर आपके टीम में कोई फॉलो बहुत ज्यादा कर रहा है और अच्छे काम के लिए कर रहा है, समझ लिए वो परफेक्ट पर्सनैलिटी को रखता है, या आप ज्यादा फॉलो अप कर रहे हो, समझ लिए आप परफेक्ट पर्सनैलिटी को रखते हैं। अनडिमांडिंग, बहुत ज्यादा ज्यादा डिमांड नहीं करते, बहुत जो चल रहा है, क्योंकि सेल्फ सेक्रीफाइस में बिलीव करते हैं। आप कर रहे हो ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं, इट्स लाइक दैट। रिलायबल, वेरी रिलायबल पीपल, एज आई टोल्ड यू दे आर ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पीपल। Serious and purposeful, very serious and purposeful. They don't do anything which is not having any purpose. They only do one purpose is there. So that is what is beauty about them. Little time to waste unproductive activities. बहुत कम टाइम है जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो लगाते हैं। क्यों? परफेक्ट पर्सनैलिटी है, जो परफेक्ट है, पर्पसफुल है, उसी में काम करते हैं, अनप्रोडक्टिव चीजों में कम जाते हैं। नाउ weaknesses. Again, I'm saying don't take it as weaknesses, but yes, somewhere it may be in contrast to others, it seems like weaknesses. What are there? Focus on negative depression because they can sense the problem. तो उनका ज्यादातर जो फोकस है वो नेगेटिव चीजों पे ज्यादा जाता है। काम शुरू किया, सबसे पहले इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। जो परफेक्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन गलती ना हो, बट वो स्ट्रेंथ की जगह वीकनेस पे पहुंच जाता है, क्योंकि हर समय वो डिप्रेस रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं और मूडी रहते हैं। Spend too much time in planning, बहुत ज्यादा, they are planning. If you see people who are plan lot but implementation side थोड़ा weak हो जाता है, that means somewhere they are possessing a perfect personality. So as I told you Jitendra ji, here when weaknesses are there, how it will help us in our success? Okay, let us just work on, we should plan but not always planning. No personality is perfect, so even perfect personality is not perfect in those senses. So how can we make it perfect? By reducing our weaknesses, by improving our strengths. Then hard to please, very hard to please. भाई इनको कोई आपने, if your boss is like that, whatever work you do, it is very hard to please him because he will assess in his own parameters in a perfectionist way. तो आपको यहां पर बेनिफिट क्या होगा? अगर आपका कोलीग, बॉस या कोई भी आपकी वाइफ, व्हाई नॉट, कई बार होता है जैसे मेरी वाइफ जो है वो परफेक्ट पर्सनैलिटी की है, तो मुझे बड़ा परफेक्ट रहना पड़ता है, और आई एम पोजेसिंग टू पॉपुलर पर्सनैलिटी, आई एम पॉपुलर पावरफुल, सो समटाइम्स व्हाट हैपन। अब यहां पर कैसे कम्युनिकेट करें? इफ शी वांट्स एवरीथिंग शुड बी इन ए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे, एटलीस्ट आई कैन डू दैट ना, क्या बुराई है? In the same way you can do it in your corporate world also, in the same way you can do in your professional world also. So just to understand, little bit compromise, little bit as per the need of other, compromise ethically, but ये काम तो कर सकते हैं ना। That's why this workshop will help you how you can make your office environment in a very very smooth environment, very cooperative environment. This way you can do it. Suspicious of people, yes, because their personality is like that. बड़ी जल्दी सस्पेक्ट करते हैं। क्यों? कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी में इनका ज्यादा जोर जाता है।
टेकिंग थिंग्स पर्सनली, बहुत जल्दी पर्सनली लेते हैं, इसलिए परफेक्ट पर्सनैलिटी वालों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए दूसरे लोगों को। अगर आपका कोई परफेक्ट पर्सनैलिटी है, बहुत सोच समझ के बोलिए, बिकॉज वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो गलती नहीं करते। जब वो गलती नहीं करते और अगर कोई कुछ उनको बोल दे, बड़ी जल्दी उनको पर्सनैलिटी में उनके ऐसा एक भाव आता है कि दे आर टेकिंग थिंग्स पर्सनली। डीप नीड फॉर अप्रूवल, यस, क्योंकि परफेक्ट है, काम को लॉन्च करना है या कोई प्रोजेक्ट कर रहा है कोई परफेक्ट नहीं, उसको अगर लॉन्च करना है उस प्रोजेक्ट को, वो सबसे पहले 50 लोगों से पूछेगा ठीक जा रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो सकता है, सो दैट कि वो नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो। बट इसकी वजह से उसको क्या होता है, ही इज ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन टू अप्रूव, यस इट विल बी डन, सो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है इनका। सेल्फ क्रिटिसाइजिंग और कॉम्प्लीमेंट्स, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग है, अगर इनकी तारीफ कर दो, "ओ सर आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं", परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला ज्यादातर उसको नहीं लेगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेगा। क्रिटिसाइजिंग तो वो खुद करता है, यार मैं कहाँ अच्छा, मैं तो ऐसे ही हूं, तो अपने आप को क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो, जैसे मैंने बोला, डिप्रेशन वगैरह जैसी चीजें आ जाती हैं। हेजिटेंट टू स्टार्ट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन इनका काम नहीं है, बट इनका नेचर हो गया है। वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग एवरी टाइम, बट वो डिले इतना हो जाता है कि लोगों को लगता है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है आप उसको डिले कर देते हैं, बिकॉज यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बट एक्चुअली में वो है, दैट इज देयर पर्सनैलिटी। स्ट्रेस्ड ओवर इम्परफेक्शन, हमेशा इम्परफेक्शन पे स्ट्रेस रहता है, ये गलत ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, परफेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। स्टिंजी, थोड़े से स्टिंजी है, वो नेचर है, बिकॉज ऑफ देयर सस्पेक्टेड नेचर इन दिस, दे आर लाइक दैट। वॉन्ट टॉक, ज्यादा नहीं बोलते, परफेक्ट लोग हैं, कम से कम बात करते हैं, काम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। नो स्पॉन्टेनिटी, इनके अंदर स्पॉन्टेनिटी नहीं है, जैसा कि पॉपुलर में है, उनको कुछ बोला नहीं वो स्टेज के ऊपर, और इनको आप जितना मर्जी मना लो, ये कभी डांस भी नहीं करेंगे ज्यादातर, क्योंकि ये स्पॉन्टेनिटी नहीं करते। हाँ, कुछ चीज आती है उसको जरूर परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीकनेसेस में आता है होल्ड्स बैक अफेक्शन, अफेक्शंस को थोड़ा होल्ड्स बैक करते हैं, ऐसा नहीं कि अफेक्शन नहीं है या इमोशंस नहीं है, बट ये नॉर्मली दिखाते नहीं, वे आर लाइक परफेक्ट पर्सनैलिटी, दे डोंट वांट टू लूज बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस। कांट एक्सेप्ट समवन ब्रेकिंग प्रोमिसेस, हाँ जैसा ये है वैसे दूसरा भी चाहते हैं कि अगर इनके साथ किसी ने प्रॉमिस ब्रेक किया, डेफिनेटली दे कांट एक्सेप्ट इट। वरी टू मच, थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिविटी में ज्यादा इनका फोकस रहता है, और वो भी अच्छी के लिए। अंडरस्टैंड दिस, व्हाई दे आर गोइंग टू नेगेटिव, बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक थिंग्स इम्परफेक्ट, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट थिंग इम्परफेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू नेगेटिव टू जज इट कि भाई परफेक्ट है कि नहीं, पर उसकी जगह चिंता ज्यादा रहती है, वरी टू मच, दे वरी टू मच। हैज फॉल्स ह्यूमिलिटी, हाँ ह्यूमिलिटी बहुत फॉल्स है, क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, इनको इमोशन से ज्यादा लेना देना नहीं, तो अगर ये कुछ बोलते हैं तो ये बेचारे उसको भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। टॉकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स एंड टुगेदर ट्रेजेडीज, हमेशा डिटेल्स और ट्रेजेडीज की बातें करते हैं, कभी ज्यादातर वो नेगेटिव, क्योंकि और वो है, वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है, जब भी ये बात करते हैं ज्यादातर उसके नेगेटिव पार्ट्स को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सिलेक्टिव हियरिंग, बहुत सिलेक्टिव हियरिंग है, इनको जो सुनना है वही सुनते हैं, अच्छी बात भी है, फोकस तभी कर पाएंगे, बट कई जगह पर ये वीकनेस बन जाता है। इंट्रोस्पेक्टिव, बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि परफेक्ट पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इसलिए। नॉट पीपल ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि पीपल ओरिएंटेड होने के लिए यू शुड हैव दैट क्वालिटी, यू शुड हैव ए सोशल नेचर, यू शुड मीट पीपल, वहां पर थोड़ा सा ये आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं। डिसलाइक्स दोस इन अपोजिशन रेवेंजफुल, यस इनको भी जो इनके अपोजिशन में पसंद नहीं है, लाइक पावरफुल पर्सनैलिटी, और ये रेवेंजफुल भी होते हैं, कई बार इनको बुरा लगता है तो ये उसका तरीके से जवाब देते हैं, जैसे मान लो कहीं पर भी हो कंपटीशन में, दे आर द पीपल हु आर ऑलवेज अहेड, बिकॉज दे हैव दैट इंट्यूशन, दे हैव दैट कॉन्फिडेंस इन दैट। लुक्स फॉर ट्रबल, यस गड़बड़ 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 कुछ भी होगा तो हमेशा उसकी ट्रबल्स क्या हो सकती है, हमेशा वो देखते हैं, बजाय उस चीज को एंजॉय करने के, तो प्रेजेंट में कम रहते हैं, फ्यूचर में ज्यादा रहते हैं। लो सेल्फ इमेज, इस वजह से थोड़ा सेल्फ इमेज लो हो जाता है, बिकॉज दे क्रिटिसाइजिंग देमसेल्फ कि ये है कि नहीं है, ठीक है या नहीं, तो वो थोड़ा सा सेल्फ इमेज उनका कम रहता है। ओके फ्रेंड्स, सो perfect is done. Let us just complete the last, which is the peaceful, and then we can take some questions also. What is peaceful personality? Name suggests very peaceful. So what are the strengths? All purpose. हमेशा हर चीज के लिए अवेलेबल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखते होंगे, ऑफिस में देखते होंगे, दोस्तों में देखते होंगे, कुछ लोग हैं जो हर चीज में हाँ है, ऐसा करें हाँ कर ले, ऐसा नहीं करें नहीं करते। दे आर वेरी 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 अकोमोडेटिव पीपल, वेरी पीसफुल पीपल, उनको झगड़े वगड़े किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अडेप्टेबल, इसलिए अडेप्टेबल है, हर कोई उनको हाथों हाथ लेता है, ओके ये ही इज गुड, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर,
काम एंड पीसफुल नेचर, वेरी गुड। कॉम्पिटेंट एंड स्टडी, बहुत कॉम्पिटेंट है, पीसफुल है तभी कॉम्पिटेंट है, इनको मतलब नहीं लड़ाई झगड़ों से, तुम करते रहो जो करना है, ये अपना काम करके निकल जाएंगे, वेरी गुड। टॉलरेंट एंड नॉन जजमेंटल, बहुत टॉलरेंट है, जजमेंटल तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? मतलब नहीं है। जजमेंट जज कौन करता है? जिसको किससे कोई कंफ्लिक्ट है या कोई समझ में नहीं आ रहा, इनको हर चीज सही लग रही है, तो जजमेंटल नहीं है। कंटेंटेड है, बहुत कंटेंटेड है, क्योंकि ज्यादा ना तो पॉपुलर की तरह पावरफुल की तरह आगे है, ना परफेक्शनिस्ट की तरह इधर जाते हैं, दे आर वेरी कंटेंटेड पीपल। प्रोएक्टिव एंड गुड पीपल स्किल, बहुत अच्छा पीपल स्किल है, क्यों? क्योंकि हर तरह के माहौल में ये एडजस्ट हो सकते हैं, पीसफुल नेचर है और हर कोई इनको अडेप्ट भी करता है। कंसिस्टेंट लाइफ, बहुत कंसिस्टेंट लाइफ है इनको, ज्यादा उतार चढ़ाव जिंदगी में नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ये अपने जीवन को जीते हैं। क्वाइट बट विटी, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, क्वाइट है लेकिन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कई बार ऐसा ऐसा बोल देते हैं मजाक मजाक में, बट विच विल बी अंडर सेंस ऑफ ह्यूमर, या ये किसी की इंसल्ट नहीं करते। गुड लिसनर, बहुत अच्छी लिसनर, पीसफुल है, अपना कुछ बोलना ही नहीं है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सुनेंगे, उस हिसाब से एक्ट भी करेंगे। सिंपैथेटिक एंड काइंड, बहुत सिंपैथेटिक है, बहुत काइंड लोग हैं। व्हाट? अंडर प्रेशर, यस, अंडर प्रेशर में बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि पीसफुल है ना, इनको माइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता ही नहीं है। जब प्रेशर होता है तो ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, ये लोगों का नेगेटिव सोच नहीं है, तो दे समटाइम वर्क वेरी गुड अंडर प्रेशर। एज कंपैशन एंड कंसर्न, बहुत कंपैशनेट पीपल हैं, कंसर्न वाले हैं, काफी कंसर्न करते हैं, क्योंकि पीसफुल हैं, ज्यादा इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जैसे तो अगर कहीं पर कोई दुख है कुछ है तो दे कैन कंसर्न, दे कैन ट्राई देयर लेवल बेस्ट व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन आस्क फॉर हेल्प। सॉफ्ट एंड लो वॉइस, बहुत सॉफ्ट और लो, जिसकी लो वॉइस है, सॉफ्ट, ज्यादातर साधु लोग हैं हमारे, शांति से बोलते हैं, कई लोग हैं, तो सॉफ्ट एंड लो वॉइस है जिसकी है, और लो पीसफुल पर्सनैलिटी का मालिक है। फिट्स इन एनीवेयर, जैसे मैंने बोला अडेप्टेबल है, किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, हर तरह के हर माहौल में चल सकते हैं, इसलिए फिट्स एवरीवेयर, कहीं पर भी कर लीजिए। मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ, बहुत मॉडेस्ट है, बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। वेल बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है क्योंकि लाइफ बड़ी सिंपल है। अग्रीएबल, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इन ऑफेंसिव, तीनों चीजें मैटर करती हैं और वैसे ही हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। हैज एडमिनिस्ट्रेटिवली एबिलिटी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। अब आप देखिए कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे एक आदमी होगा जो सारा काम कर रहा है ज्यादातर, कभी आप किसी डॉक्टर के नर्सिंग होम में या किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको एक आदमी हर जगह दिखेगा, बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल लोग आदमी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। वो आदमी हर जगह दिखेगा और वो क्या करता है, वो हर चीज में काम करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को देखना, इस तरह से देखना, दे आर नॉट सीईओ बट दे आर वेरी लो लेवल मैनेजर पीपल, बट दे डू वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। पेशेंस इज नॉट इन हरी, हमेशा पेशेंस में रहते हैं, कोई हरी नहीं है, जिंदगी में आराम से चलानी है, वही चीज इनके अंदर दिखती है। फाइंड्स द इजी वे, यस, बिकॉज पावरफुल पर्सनैलिटी या पॉपुलर पर्सनैलिटी या परफेक्ट पर्सनैलिटी की तरह बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और उस चीज में नहीं जाते, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते, हमेशा एक इजी वे को फाइंड करते हैं, जो कि जरूरी है। कई बार अगर आप देखेंगे हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सिचुएशन को, उस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय अगर हम सिंपली वे में जाएं तो इजी वे बहुत सारे मिलते हैं, जिसके लिए पीसफुल पर्सनैलिटी वाले काफी, जो कहते हैं कि उस चीज में आगे बढ़ते हैं। इजी टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, वेरी सिंपल, क्योंकि अडेप्टेबल है, हर जगह पर ये फिट हो जाते हैं, तो इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, काफी लोग जानते होंगे इन लोगों को, और ये लोग बहुत लोगों को जानते होंगे कि अच्छे सज्जन आदमी है, इस तरह से। वॉचर, ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं, ये वॉच करते हैं, एक्ट नहीं करते, वॉचर है, तो वो ऑब्जर्वर जो होता है कई बार वो बहुत अच्छी पोजीशन में होता है चीजों को सेटल करने की। मेडिटेट्स थ्रू प्रॉब्लम, मीडिएट थ्रू प्रॉब्लम्स एंड रिलैक्स, मीडिएट करते हैं ये, क्यों? क्योंकि जो पीसफुल पर्सनैलिटी वाले होते हैं ज्यादातर लोग उनके पास जाते हैं, सर ये झगड़ा हो गया बताओ क्या करें, तो ये झगड़े में नहीं घुसेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को बड़े रिलैक्स तरीके से संभाल सकते हैं, और अच्छी बात है, और उनकी बातें ज्यादा लोग मानते हैं। व्हाट आर द वीकनेसेस, वीकनेस तो होंगी डेफिनेटली, हर एक पर्सनैलिटी की वीकनेस है। डिसिसिव, यस, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये लोग नहीं लेते हैं। क्वाइट विल ऑफ आयरन, वंस टेक डिसीजन, यस, ये डिसीजन नहीं लेते कहाँ के लिए, ध्यान समझिए, दोनों बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है, डिसीजन नहीं लेते दूसरों के लिए, लेकिन जो अपने लिए डिसीजन लेते हैं उससे कभी बैकअप नहीं करते, कभी बैक ऑफ नहीं करते, तो वो आयरन की तरह। तो कभी भी आप देखिए, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज है और किसी ने बोला कि आप चीनी छोड़ दीजिए डायबिटीज के लिए, अगर वो पीसफुल पर्सनैलिटी वाला है, उसने डिसाइड कर लिया कि चीनी मुझे नहीं पीनी या चाय मुझे नहीं पीनी, बिलीव मी, कितना भी फोर्स कर लो, ये कभी भी चाय नहीं पियेंगे या चीनी नहीं लेंगे। सो दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकर दे आर।
नो इनर पर्पज और एम्बिशन, उनका कोई इनर पर्पज या एम्बिशन नहीं है, पीसफुल है, जो है यही है सब कुछ तरीके से, ज्यादा एम्बिशियस नहीं है इसलिए पीसफुल है। एंड एंथुजियास्टिक, अनएंथुजियास्टिक है, ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं है, अनलाइक पॉपुलर एंड पावरफुल पर्सनैलिटी। रेसिस्ट चेंज, रिलक्टेंट एंड रेसिस्ट। अब रेसिस्ट चेंज क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते, जैसी जिंदगी चल रही है सीधी 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 शांति से चलती जाए, इनको वो कुछ है। इसलिए जब भी कभी चेंज होता है, मान लो आपका ईआरपी चल रहा है, सडनली आपने दूसरा ईआरपी लगाया या कोई और प्लेटफॉर्म बना दिया, तो द पीपल हु रेसिस्ट मोर वुड बी द पीसफुल पीपल, क्योंकि उनकी शांति भंग हो रही है यार, सीधे सीधे तो चल रहा है, क्यों चेंज कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ नेचर दे हैव। देन फियरफुल एंड डाउटफुल, फियरफुल है, डाउटफुल है, होता है क्योंकि ज्यादा कुछ सोचते नहीं इसलिए डर जल्दी जाते हैं। लेजी होते हैं, पीसफुल है ना भाई, तो लेजी तो नॉर्मल है। इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग क्राइसिस, थोड़ा सा क्राइसिस को हैंडल करना इनकेपेबल है, क्योंकि ये बहुत फ्रंट फुट पे जाके नहीं लड़ सकते, बैक फुट पे ये सपोर्ट करते हैं बट फ्रंट फुट पे नहीं। थिंग्स आर ऑल अराउंड द प्लेस, इनकी चीजें हमेशा फैली होती हैं, ज्यादा फोकस या व्हाट वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते। हेट्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हेट करते हैं, अगर मान लो इनसे किसी का झगड़ा होगा तो ये सबसे पहले शांत कर दे, भैया रहने दे, तुम जो कह रहे हो बढ़िया है, तो दे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते ये, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई दे अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेता है सर, जिसको आगे बढ़ना है, या आई नीड ए ग्रोथ पोटेंशियल, आई एम नॉट सेइंग दैट दे पीपल आर नॉट ग्रोथ ओरिएंटेड, बट देयर ग्रोथ लेवल, देयर ग्रोथ परसेंटेज इज वेरी वेरी लो देन द अदर पीपल हु वांट ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रो इन लाइफ। सार्केस्टिक एंड टीजिंग, थोड़ा सा सार्केस्टिक है, और टीजिंग तो होता है बिकॉज नेचर ऐसा है, तो दैट इज लाइक दैट। कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज बहुत करते हो, तो कई बार ये नेगेटिव हो गया, कॉम्प्रोमाइज ज्यादा भी नहीं करना चाहिए लाइफ में, बट क्योंकि इनका नेचर ऐसा है तो हमेशा ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। थोड़ा डल हो जाते हैं इसी वजह से, ज्यादा इंथुसियास्टिक नहीं है। वुड रादर वॉच एंड स्टे अनइन्वॉल्व, एज आई टोल्ड यू दे आर वॉचर, वो कोई भी चीज चल रहा है सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते अनलेस एंड कोई जरूरत ना हो। कीप्स इमोशंस हिडन, इनके हिडन इमोशंस भी हिडन होते हैं लाइक परफेक्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि इमोशन का मतलब है कि आप इमोशंस में, जरूरी नहीं इमोशंस में आप प्यार ही करेंगे, इमोशंस में आप गुस्सा भी कर सकते हैं, इमोशंस में आप कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, लॉट ऑफ इमोशंस, बिकॉज यू आर पीसफुल, दे डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉर्मली दे कीप हाइडिंग देयर इमोशंस। कंट्रोल इज पैसिव बट एग्रेसिव, इनका कंट्रोल थोड़ा पैसिव होता है जैसे मैंने कहा, लेकिन अग्रेसिव है, यस कभी करना है तो वो काम करेंगे, अग्रेसिव है बट इंटरनल, नॉट फॉर आउटर पीपल। टू शाई एंड लेस टॉकर, बहुत कम बोलते हैं, शाई लेते हैं, तो जहां तक पीसफुल लोगों को आप देखें, अगर पार्टी में तो जाते ही नहीं, अगर जाते में तो बड़े कोने में शांति से बैठे होंगे, दे आर पीसफुल काइंड ऑफ पीपल। प्रोकास्टिनेशन यस हो जाता है, क्योंकि काम को बहुत फास्ट नहीं कर पाते, डिले हो जाता है। सो नाउ वी नो द 4 पर्सनैलिटीज, यस। So, is there anything you want to share till now? Because we have very few slides left. I will just say how you can use and what is the quicker way to understand personality. I will just give some tips. But is there anything, or whether you are now involved? Okay, I am having that personality, or my friend might have that kind of personality. Something. If something is there you want to share, please. Anyone? Anyone who hasn't spoken yet? All are peaceful kind of people here. I want popular. Who is the popular personality or powerful personality, or maybe someone who wants to share something? No, all personalities are good. If peaceful personalities there, they have their strength and weaknesses. Same for perfect, same for popular, and same for powerful. Anyone? Or shall we move ahead? So exercise 2. एक्सरसाइज 1 आप लोगों ने की नहीं है, पर वो कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा। एंड इफ यू वांट एनीथिंग, माय नंबर्स दे माइट बी शेयरिंग, इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। बट एक्सरसाइज 2 क्या है, जब आपको ये सारी पर्सनैलिटीज पता चल गई, प्लीज आफ्टर दिस आप कम से कम जो भी एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को ऑन पर्सनैलिटी, सो फॉर यू वीकनेस एंड ऑल यू ऑलरेडी नो। सो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज आइडेंटिफाई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इन योरसेल्फ। Whatever strengths you have, at least identify 3 most important in chronological. Okay, like for example, I am a good communicator, I take leads,
I can, what we can say, I am, wherever I go, I make people happy, I make people surrounding with me. So I'm, because I possess popular personality, for example. So identify three most important strengths, and similarly identify three most prominent weaknesses. Again, I'm saying it is not weakness, but maybe where you want to work on. So you can work on those weaknesses. So this is your exercise 2, and please do share your experience out of this exercise with your two close ones. Why close ones? क्लोज वंस वो हैं जो आपके दोस्त हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, या किड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोलीग हो सकता है। उसके साथ डिस्कस कीजिए, ये मेरी 3 स्ट्रेंथ है या ये मेरी 3 वीकनेसेस हैं। उसको भी बोलने दीजिए। आपको मालूम नहीं, जो 80% मैंने बताया था ना, जो हमें मालूम नहीं है हमारे बारे में, जो काफी हद तक आपको मालूम पड़ गया है, वो 80% आपका दोस्त ज्यादा जानता होगा आपके बारे में। बिकॉज पीपल ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स है ना, वो हमें ज्यादा ऑब्जर्व करती है। मैं बोल रहा हूं इस समय, मैंने पूरी की पूरी पर्सनालिटी पे वर्कशॉप दे दी। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग सोचें, यार अमित जी ने बोला तो है लेकिन समझ में नहीं आया, ज्यादा थोड़ा जल्दी बोल गए, या थोड़ा कम बोला, या ज्यादा लाउड था। मैं नहीं समझ सकता वो। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम आई कैन नॉट ऑब्जर्व माई सेल्फ देन द अदर। सो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बात कीजिए, समझिए, उनका फीडबैक लीजिए। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। कीजिए, ये एक्सरसाइज 2 आप कीजिएगा। नाउ इफ आई वांट टू गिव यू समराइज्ड वे, अ पॉपुलर पर्सनैलिटी अगर आपको देखना है जो फन वे में जाता है, कोई भी आपका दोस्त, कुलीग, आप खुद, अगर आपका फन वे में ओरिएंटेशन ज्यादा है, यू माइट बी पोजेसिंग मोर देन 60% ऑफ पॉपुलर पर्सनैलिटी। परफेक्ट पर्सनैलिटी, राइट वे, जो हमेशा सही रास्ता जाना चाहता है, राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, कैन इजीली फाइंड आउट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, मीन्स परफेक्ट पर्सनैलिटी। Powerful personality, my way. Powerful is always my way. This is my way. You need to lead, follow this. That is powerful personality. And peaceful personality, easy way. जो इजी वे है, पीसफुल पर्सनैलिटी चाहता है। सारे के सारे रास्ते सही है, गलत कोई रास्ता नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर हमारे को रास्ते मालूम है, या रास्तों के हिसाब से अगर हमको अपनी पर्सनैलिटी मालूम है, हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। अनदर वे, पॉपुलर पर्सनैलिटी क्या कहता है? लुक एट मी। वो हमेशा अपने आप को इतना कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि लोग उसको देखें। लुक एट मी। पावरफुल पर्सनैलिटी क्या कहता है? एप्रिशिएट मी। नाउ अंडरस्टैंड, इफ सपोज you are possessing a powerful personality, or your boss possessing a powerful personality, or your colleague possessing a powerful personality, what is the way? Again, this appreciation should be a genuine appreciation. I must say that it is not that you need to butter him or something like that, but if you appreciate a powerful personality in a right way, he will become more accommodative to you. और ये बुराई नहीं है। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा लड़ते रहते हैं, मेरा ये डिपार्टमेंट, उसका ये डिपार्टमेंट, इसका ये डिपार्टमेंट। फाइनेंस वाला हमेशा प्रोक्योरमेंट से लड़ रहा है, प्रोक्योरमेंट वाला हमेशा एकेडमिक, जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, स्कूल्स में हूँ, एकेडमिक वालों से लड़ रहा है कि नहीं ये क्यों मांग रहे हो, कब मांग रहे हो। कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई अपने सबऑर्डिनेट से परेशान है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें, अगर हमें पर्सनैलिटीज के बारे में पता है, हमें दूसरे के नेचर के बारे में पता है, चाहे हमें 10%, 20%, 30% पता है, धीरे धीरे उसको इंप्रूव करें, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर surroundings. And your surrounding, if your surrounding is happy, your big picture is always achievable, the main vision of the organization. What is perfect personality? Understand me. हमेशा perfect personality ये बोलता है, मुझे समझो, मैं गलत नहीं कह रहा, ये गड़बड़ हो सकता है। लोग क्या कहते हैं, यार तू हमेशा नेगेटिव दिखाता है, बट वो सही बता रहा है। आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है, बिकॉज ही हैड स्टडीड दैट इन अ वेरी माइक्रो लेवल, उसने बहुत टाइम लगाया। तो हमें उसको समझना जरूरी है। अगर उसको समझोगे, परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला खुश होता है, यार ओके यू अंडरस्टैंड मी, ही विल गिव यू मोर टिप्स। बट आवर पीसफुल पर्सनैलिटी, ही सिंपली से रिस्पेक्ट मी। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, ना मैं झगड़ा कर रहा हूं, ना मैं लड़ाई कर रहा हूं, ना मैं किसी कंफ्लिक्ट में जा रहा हूं, कम से कम मुझे रिस्पेक्ट तो दो। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज पर्सनैलिटीज। सो दिस इज it for today's session, because this is a very wider chapter and we want to come up with those things. If we can at least do, I'm just stopping sharing for the time being, if we can have a bigger way and bigger view of the audience and all. So personalities, if we know, as sir asked that how it will help us in performance, I'm saying it's not only performance, it will be helping you in your personal and all surrounding.
all relations, because this is a relationship. Relationship is not in isolation. Relationship, communication need at least two people. Who is that second person? The second person is who we are communicating to. So I hope that you would have understood this. You will implement this. You would have known that, okay, this kind of personality I could be have. Work on that and please do that exercise. I would again request Mr. I'm just forgetting your name, sir. Sorry. Thank you, sir. Keshav. Keshav. So please share that video link again to the people who are there and let them do that exercise. I will ask my team to send you a personality treats. Once you know that, you can see, okay, this kind of personality I have, or you can also work on who kind of personality the other people are possessing who are in your nearby relationship or maybe in professional life. That will help you. So, and from my side, and now over to you. At last, sir, I would like to thank you for giving such a wonderful session. And I would like to say, participant, kindly do a exercise. We will share the link with a recording link for activities. Kindly do it. Anyone, any question? Perfect. Sir, I think we should leave now. Thanks, everyone. Thank you, everyone. Thanks for your patience listening.